हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम के चंदेल फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 नाल बीकानेर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोशन ऑफ द अर्थ। क्लास 6 का ये टॉपिक है, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट्स rotation. In this chapter we will touch and try to understand about the rotation, the revolution, orbital plane, circle of illumination, leap year, elliptical orbit, summer solstice, winter solstice and equinox. तो वन बाय वन हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटेशन। फ्रेंड्स, व्हाट इज रोटेशन? द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। फ्रेंड्स, as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. Our earth takes 24 hours to complete one rotation, and the period of rotation is also known as the earth day. This is the daily motion of the earth. Day and night on the earth due to rotation. Now we will discuss about the revolution. The revolution is the second motion of the earth. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. The second motion of the earth around the sun, its orbit is called revolution. It takes 365 and 1/4 days, that is 1 year, to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. Now, orbital plane. What is orbital plane? The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. Now come to the circle of illumination. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. डे एंड नाइट जो फॉर्म होते हैं वही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ये सर्कल डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लीप ईयर। स्टूडेंट्स, you have studied about the concept leap year in previous classes. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus days is added to the month of February. Thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Now come to the elliptical orbit. Throughout its orbit, the Earth is inclined
in the same direction. It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. एलिप्टिकल ऑर्बिट वो है जिसके अंदर अपनी अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक सेम डायरेक्शन के अंदर अर्थ सन के चारों तरफ जो घूम रही है उसका जो रास्ता है वही एलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है। समर सोलिस्टिस, the longest day and the shortest night occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The nights are longer than the days. This position of the earth is called summer solstice. तो समर सोलिस्टिस किसको बोलते हैं? 21 जून को सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी नाइट होती है। और एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये कंडीशन रिवर्स होती है। वहाँ पर विंटर सीजन होता है, वहाँ पर नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। तो ये जो अर्थ की पोजीशन है इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। आफ्टर डिस्कशन ऑफ समर सोलिस्टिस वी विल डिस्कस नाउ विंटर सोलिस्टिस। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ, a larger portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. तो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज होने की वजह से विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस होता है। विंटर सोलिस्टिस समर सोलिस्टिस से जस्ट अपोजिट है। अब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन रेज गिरती है तो वहाँ पर अच्छे से लाइट मिलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय गर्मी होती है, समर सीजन होता है। डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होती हैं। और विंटर सोलिस्टिस के टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कंडीशंस रिवर्स हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सोलर सोलिस्टिस। सीजन्स की अगर हम बात करें तो अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, एंड द सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मीन्स ड्यू टू द रिवोल्यूशन द सीजन्स चेंज्ड। डिफरेंट टाइप्स के जो सीजन्स होते हैं वो अर्थ की पोजीशन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो ऑटोमेटिकली सीजन भी चेंज होते रहते हैं। व्हाट इज इक्विनॉक्स? ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। फ्रेंड्स, जो अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड करती है दो भागों में लाइन, equator is an imaginary line which is divide our earth into two equal parts, in northern side northern hemisphere, in southern side southern hemisphere। तो उस इक्वेटर लाइन पर 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सन रेज एकदम डायरेक्टली पड़ती है। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर सन की लाइट पृथ्वी के एकदम बीचों बीच पड़ती है, और ऐसा 2 दिन होता है, स्पेशली 21 मार्च और 23 सितंबर। इन 2 दिनों में डेज और नाइट इक्वली होते हैं, 12-12 घंटे के। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स।
अब आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर सन है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, मरकरी साइज भी उनकी यहाँ पे दी हुई है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये फिक्स्ड अपने ऑर्बिट में फिक्स्ड पाथ में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी ही जगह पे भी घूम रहे हैं। फ्रेंड्स, रोटेशन और रिवोल्यूशन को एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। रोटेशन का मतलब है अर्थ का अपनी ही जगह पे घूमना। अर्थ अपनी ही जगह पे, अपने एक्सिस पे अपने ही चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से डे नाइट फॉर्म होते हैं। और अर्थ सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, उसकी वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। अर्थ अपनी ही जगह पे घूमती है, उसको तो रोटेशन बोलते हैं। 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। और अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। 365 डेज और 6 आवर में एक रिवोल्यूशन पूरा होता है, और उस रिवोल्यूशन में अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है, तो उससे सीजन्स फॉर्म होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो प्लूटो, हुमिया, एरिस वगैरह भी प्लैनेट है, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। एक्चुअली ये वो प्लैनेट्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन खो दी है, ये वो प्लैनेट्स हैं। प्लूटो जैसे प्लैनेट्स को हम ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए बोलते हैं कि ये जिस पाथ में घूम रहे थे सन के चारों तरफ, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना पाथ छोड़ दिया। एक प्लैनेट की कंडीशन ये है, तब तक हम उसको प्लैनेट मानेंगे तब तक वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहे, लेकिन इन्होंने अपनी दिशाएं चेंज कर दी। इन प्लैनेट्स ने अपने रास्ते चेंज कर दिए। तो अब डियर फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। अब आप इस फिगर में देखिए, सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है। सन की मूवमेंट बिल्कुल हल्की सी होती है, इसलिए हम सन को फिक्स्ड मानते हैं। 6th स्टैंडर्ड में हम केवल इतना पढ़ते हैं कि सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, बट अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर इस फिगर में रिवोल्यूशन प्रोसेस को दिखाया गया है कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब अर्थ की अगर हम पोजीशन देखें तो समर सीजन के अंदर अर्थ का झुकाव सन की तरफ कैसा है, ऑटम सीजन में अर्थ आगे बढ़ती है, ऊपर की तरफ आती है, तो इक्वेटर की पोजीशन कैसे हो जाती है, और अर्थ का जो टिल्टिंग है, झुकाव है, वो भी बदल जाता है, तो ऑटम सीजन आ जाता है। फिर और हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थ का जो एक्सिस है फिर चेंज होता है और विंटर सीजन फॉर्म होता है। और लास्ट में फिर देखते हैं 365 डेज का जो ये 1 ईयर है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का, तो चारों पोजीशंस में अर्थ की पोजीशन, चारों कंडीशन में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। तो समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, ये चारों सीजन फॉर्म हो रहे हैं। इसमें अर्थ की सन के सामने इक्वेटर पोजीशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोजीशन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पोजीशन एंड अर्थ का एक्सिस पॉइंट, ये सब बदल रहा है। इसलिए रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स फॉर्म होते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, इन दिस पिक्चर you can see that it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में जा रही है। दिसंबर 21 को आप देखोगे कि जो सन की पोजीशन है वो अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही है। मार्च 21 पे देखोगे कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की पोजीशन कैसी है, डिग्रीज के अकॉर्डिंग भी इसमें दिया हुआ है। जून 21 को भी आप देखोगे कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कैसे है, और लास्ट में सितंबर 23 को भी आप देख सकते हैं। हर एक जगह पर अर्थ की पोजीशन चेंज है, उसकी वजह से सनलाइट का भी डिफरेंसेज होता है, और उसी वजह से एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने की वजह से, अपना एक्सिस पॉइंट चेंज करने की वजह से सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स फॉर्म होते हैं। नाइट लॉन्गर और शॉर्टर, डेज लॉन्गर और शॉर्टर, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। मून की पोजीशन भी आप देख सकते हैं कि अर्थ अपने बीच में है और मून अपने सैटेलाइट है मून, तो हम उसका कौन सा फेस देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो उस वजह से हम मून की एक ही साइड देख पाते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट इज ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पर डे नाइट फॉर्म हो रहे हैं। सन के सामने अर्थ का जो भाग है वहाँ पर डे है, सन के अगेंस्ट पीछे में जो अर्थ का भाग है वहाँ पे नाइट है। सो डे एंड नाइट ऑन, yes, in this figure you can see this is the picture of the earth showing the north pole and south pole। दोनों ही पोल को हम यहाँ पर अर्थ के देख सकते हैं। So thank you so much for watching this video।